शुरू करते हैं। सब्सक्राइब, रेडी? Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start.
So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a quiz? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1,
17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Are you ready for a counting challenge? So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। स्वास्थ्य को अगर हमें ठीक रखना है तो सुबह सुबह हमें इतना वर्कआउट करना पड़ता है। नहीं तो हम जैसे
आम आते हैं तो आम के टाइम में तो लोग खा खा के इतने मोटे हो जाते हैं, खाते तो रहते हैं कम से कम 5,000 कैलोरी, बर्न करते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो वो फैट जमा हो जाता है। तो हमारे शरीर के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें डेली वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। इतना ज़रूर है कि इसमें जैसे हम पसीना भी आता है, नाक से पानी भी बहने लग जाता है और पेन भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये गुड पेन है। और जो मेरे हमेशा रहता है वो बैड पेन होता है, क्योंकि जो भी पेन हमारे शरीर के अंदर पहले आता है हमें पता नहीं चलता कि कब हमारे शरीर में गठिया बन गया, कब हमारे शरीर में और बीमारी बन गई, कब हमारे शरीर में हर्निया बन गया, कब हमारे शरीर में डायबिटीज़ बन गई, कब हमारे शरीर में थायराइड बन गई, कब हमारे शरीर में हेडेक बन गया, कब हमारे शरीर में माइग्रेन बन गया, कब हमारे शरीर में आर्थराइटिस बन गया, और कब मलेरिया हो गया, कब डेंगू हो जाता है, कभी कोरोना आ जाता है। ये कोई सोच समझ के नहीं आते हैं। इसे पहले अगर एक व्यक्ति योगी है तो उसे ये पहले ये चीज़ का समझ आ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर विकृति पैदा होना शुरू हो गई है। थोड़ी सी दस्तक जरूर दे देता है शरीर कि आपके शरीर में विकृतियाँ पैदा हो गई और समस्या पैदा हो गई। जैसे मैं हमेशा योगा करती हूँ, लेकिन योगा करती हूँ तो हमारा हमेशा क्या होता है कि मेरा शरीर का जो भी टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल है जो है, योगा करती हूँ तो पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, किडनी जैसे मतलब तेलीय पदार्थ है वो है जो पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार मेरे जो वो तेलीय पदार्थ हैं, पसीना है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। कोलेस्ट्रॉल है, टॉक्सिन्स है जो जमे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि अब विकृतियाँ पैदा हो गई हैं हमारे शरीर में। हालांकि मैंने बेटे अभी वो वजन लिया नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है 55 से ऊपर हो चुका है, जबकि मेरा वज़न है वो 44 के लगभग, 45-46 के लगभग, या ज़्यादा से ज़्यादा 49 रहता था। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ता था। लेकिन इस बार मुझे महसूस हो रहा है, वैसे चर्बी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मेरे जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हुई है। तो मेरे को खुद को ये महसूस हो रहा है कि मतलब मेरा वेट बढ़ा है। तो चर्बी बढ़ना गलत बात है, मसल्स बढ़ती है, हड्डियाँ बढ़ती हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स बढ़ती हैं। तो मसल्स के लिए हमें व्यायाम करना ज़रूरी होता है और हमारे शरीर को स्ट्रेचेबल बनाने के लिए हमें योग करना ज़रूरी होता है। शरीर को स्ट्रेचेबल बनाना, हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना, इसके लिए योग ज़रूरी होता है। योग को लोग समझते हैं कि योग एक छोटा सा शब्द है, योग है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे फर्श है, गड़ रहा है, चुभ रहा है नीचे, क्योंकि दरी पतली सी है इसलिए। और भाई थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया है, हड्डियाँ बढ़ गई हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। तो ये योग एक बहुत ही एक विस्तृत एक शब्द है, एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जो चीज़ समाई हुई है, जितना भी जो कुछ है वो योग है।
योग को लोग ये छोटे से रूप में देखते हैं कि योग कर रहे हैं, लेकिन जब हम योग को बारीकी से समझते चलते हैं तो इसको हर आदमी के समझ से बाहर होता है। जब व्यक्ति योग करता है, अपनी योग की हमारे शरीर की बारीकियों को पढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर न मालूम कितनी कितनी मर्म है, कितनी कितनी हमारी अस्थियां हैं, कितनी कितनी हमारी मसल्स हैं, कितनी कितनी हमारे शरीर के अंदर वो संधियां हैं, कितने कितने हमारे शरीर में तंत्र हैं, कौन कौन से अंग हैं, उसके बारे में समझना, वे क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या क्या उसके फंक्शन है, उसको समझना और उसको योग से कोरिलेट करना, कोरिलेट करके और इसके बारे में समझ करके फिर इस योग में जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रात दिन जिस प्रकार से हमारे संगीत में हमारे मस्तिष्क के जो तंत्र है, मस्तिष्क तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्व बोलते हैं जिसे हम, वो तंत्र है, उसके अंदर तार बजने शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेशन होता है वहाँ, और हमें धीरे धीरे हमें एक सुकून सा महसूस होता है। जब हम सुनते हैं तो होता है, तो हमारे शरीर के सारे रोम खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर क्रिया हो रही है, हमारे प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक मसल्स, प्रत्येक संधियां और प्रत्येक अस्थियों में, अस्थि मज्जा और ये न मालूम कितने कितने क्या कुछ है। जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। इस चीज़ शरीर को समझ करके जब हम संगीत पूरा समझ करके जब हम संगीत में जाते हैं तो संगीत में हमारा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है ऐसे करके। और जब वो वाइब्रेशन शुरू होता है हमारा गले वगैरह है ये भी ठीक हो जाता है, योग से ठीक होता है गला हमारा। और जब हम संगीत का और योग का भी बहुत ही एक कोरिलेट है। जब हम संगीत गाना शुरू कर देते हैं तो जो एक एक जो शब्द हम बोलते हैं, ये लोग तो क्या कि छिछली बातें करते हैं कि ये गाना, वो ऐसे गाना गा रही है, वो इसलिए गा रही है, वो ऐसे गा रही है, वो ऐसे गा रहा है, उसके लिए गा रहा है, वो उसके लिए गा रहा है। किसी के लिए नहीं गा रहे हैं, हम हमारे शरीर के लिए गा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है। जब हम गाना गाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन होकर के प्रत्येक कोशिका में जब ये हमारा श्वास प्रतिश्वास जाता है तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है। और जो मृत कोशिकाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं और जीवित नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है, मसल्स का निर्माण होता है। और व्यक्ति धीरे धीरे करके स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। आज से लेकर के जब मैं 2007 के लगभग 2007 में जब मैंने सेकंड ग्रेड के टीचर का एग्ज़ाम दी, नहीं 3rd ग्रेड के टीचर का एग्ज़ाम दिया था। मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत की थी, झुंझुनू में मैंने कोचिंग की थी और इतना पढ़ा था, मैंने इतना पढ़ा था कि वो कहते हैं कि राज में सिर नहीं था, क्योंकि मेरे लिए ये योग में आना जरूरी था। ये एक सुनहरा मौका मुझे ईश्वर ने मेरे लिए छोड़ रखा था। तो उस टाइम मैं 1 नंबर से रही थी और डिप्रेशन में आ चुकी थी। अगर आज के दिन अगर मैं कोई एग्ज़ाम दूं और मेरा सिलेक्शन न हो तो मैं डिप्रेशन में नहीं आती। और पढ़ाई में भी दिन दुगुना रात चौगुना फायदा होता है, याद भी ज़्यादा होता है और वो मेमोरी में फीड रहता है, कोई भी उसे निकाल नहीं सकता। जब उसी का परिणाम है कि उस टाइम
मेरे सब कुछ याद था, लेकिन मेरा ये दिमाग में एक भय था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूँगी। अगर उसी टाइम मेरे ये न होता कि सिलेक्शन हो या ना हो, हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। हालांकि मेरे सब कुछ याद था, लेकिन जो 10 क्वेश्चन ऐसे थे तो जिसको मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि 99% सही है, 50% अगर कोई क्वेश्चन सही होता है तो उसमें भी 2 क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है, लेकिन 99% ये कॉन्फिडेंस होता है आदमी में कि ये सिलेक्शन, ये मतलब ये सही है मेरा, तो वो सही जाते 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। और वो 10 क्वेश्चन छोड़ते तो मैं टॉप में आती, और मुझे कॉन्फिडेंस था इसमें, लेकिन माइंड इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। आज मैं 51 वर्ष की हो चुकी हूँ। 51 वर्ष में मैंने आज योग में 76% ला के दिखाया है, एक डॉक्टर की पीजी की डिग्री में। क्या उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता था? हो सकता था। क्या मैं काबिल नहीं हूँ? मैं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति काबिल होता है। 2nd ग्रेड का दिया था संस्कृत का, उसमें भी मैंने सब कुछ याद किया था, लेकिन उस टाइम क्या है कि पेपर आउट हो चुका था, नहीं मेरा सिलेक्शन होता। लेकिन मेरे लिए भगवान ने ये सुनहरा योग का एक दे रखा था। उस टाइम मेरे गठिया हुआ 2007 में, उस डिप्रेशन में आ गई थी, एलर्जी भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे पानी की भी मेरे प्रॉब्लम थी, जयपुर में भी मैं पानी से परेशान हुई थी, क्योंकि वहाँ पुल का और नहरों का पानी था। 4-5 महीने मैंने मेरे लेसन लगे, तब तक 40 लेसन लगे, तब तक मैं वहाँ रही। लेकिन मैंने बुखार में, डेली बुखार में और पाचन कमज़ोर में, और मैंने 4 महीने निकाले और मैंने शिक्षा शास्त्री की थी। उसके बाद में मैं क्या गई, सर से छुट्टी लेकर के घर आई कि मुझे पता था मेरा पानी सेट नहीं हो रहा है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे, ये सबसे बड़ी कमी है कि मेरा पानी सेट नहीं हो रहा है, मेरे मानसून सेट नहीं हो रहा। नहीं, मैंने मालूम क्या करके दिखाऊं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मैं कर सकती हूँ। और उस टाइम फिर मैं गांव आई छुट्टी लेकर के, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। नहीं, मुझे बीएड छोड़ना पड़ेगा, शिक्षा शास्त्री छोड़नी पड़ेगी। मेरा डेली बुखार रहता है, मैं लेसन देने के जाती हूँ, ओटिया वापस आती हूँ, रात के 3 बजे तो मैं लेसन बनाती हूँ। लेकिन खुद चित्र उतार के मेरा डायरी में नोट करती थी। लोग क्या करते हैं कि चित्र को किताब से लेकर के रोज चिपका देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मेरा काम मैंने वर्क किया है, वो उतार के सब उसको चिपकाती थी हमेशा के लिए। 40 दिन के लेसन लगे थे। ये नहीं है कि मेरी शिक्षा शास्त्री जो हुई थी, जो हमारे भारत में 8 कॉलेज थी, जो सरकारी कॉलेज थी, 800 रुपये में मैंने भी बीएड की थी, शिक्षा शास्त्री की थी, 800 रुपये फीस में। और वो करके 40 लेसन दे करके मैं सर अब मैं गाँव जाऊँगी। बोले बेटा डायरी बनानी है। मैं सर डायरी में 1 रात में बना दूंगी आपको। बोले 1 रात में कैसे बना देंगे, लोग 15 दिन से बना रहे हैं। मैं सर मैं बना दूंगी, मेरी गारंटी है 1 रात और 1 दिन दे देना आप मुझे, लेकिन कोई डायरी मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब मैं यहाँ आऊँगी नहीं कॉलेज में तो मैं कैसे कर पाऊँगी। जब मैं देखूँगी नहीं कि अब क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं झुंझुनू आई, झुंझुनू आते ही झुंझुनू का मैंने पानी पिया, और पीते नहीं मेरे 4 महीने से मुझे पानी न तो भूख लगी न मुझे प्यास लगी। और झुंझुनू में आते ही मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। झुंझुनू में आते ही मैं आकर के पानी पिया, 2 बार पानी पिया, और मुझे बार में प्यास लगने लग गई, और मुझे इतनी भयंकर भूख लगने लगी जो जयपुर में मुझे भूख नहीं लगी थी। इतनी भयंकर भूख लगी, टूट करके मैं जा करके माँ के पास जाऊँ और मैं रोटी खाऊँ। तो आते ही मैं मेरी माँ को बोला, माँ मुझे खाना बना दे, बस मैं भूख मर रही हूँ। तो बोल तो कह रही थी नहीं, बोले मुझे भूख ही नहीं लग रही। वहाँ नहीं लग रही माँ, झुंझुनू में आते ही मुझे भूख लगने लगी, पानी पीते ही यहाँ। तो मैं आ करके कम से कम, वो कहते हैं कि किसी को मजाक लगेगा, 3.5 रोटी बाजरे की खाई।
और खा करके एकदम से तृप्त हो गई, आराम से नींद आई, आराम से बार बार में प्यास लग रही है, बड़ा सुकून महसूस हुआ। तब जा करके मैंने मेरे पिताजी से कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलो और पानी लेके जाएंगे यहाँ से। फिर बाकी के जो 9 महीने 4 महीने मैंने बिताए, 5 महीने जो मैंने बीएड की थी जयपुर में, शिक्षा शास्त्री की थी, मैंने झुंझुनों से, मेरे गांव से मेरे पिताजी मेरा पानी लेकर जाते थे। मैं उस मेरे बाप को मैं धन्यवाद देती हूँ, इन्होंने मुझे ऐसे कर करके शिक्षा शास्त्री पानी पिलाया, मुझे पानी पिला करके मेरे साथ रह करके मुझे बीएड करवाया। मेरी क्या इतनी औकात थी, मैं कर लेती, बीच में छोड़ के आ जाती थी, लेकिन माँ बाप ऐसे होते, माँ बाप का कोई कर्ज उतार ही नहीं सकता। लेकिन मेरे बाप ने ये कहा था कि बेटा मैं आपके पास आ रहा हूँ, 12 महीने मैं शिक्षा शास्त्री करवा रहा हूँ, इसका फल मिलना चाहिए, अगर तू नहीं बनेगी कुछ मेरा आत्मा टूट जाएगी। मेरे पिता और माँ के लिए कर रही हूँ। उसका नाम रोशन होना चाहिए। नमन करती हूँ मेरे माँ बाप को, जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले, मुझे सुकून दिया, खुशी दी। लेकिन 5 वर्ष से जब मेरे बाप ने मेरा पालन पोषण किया था, गरीब थे लेकिन मेरे पालन पोषण में कमी नहीं छोड़ी गई। मैं तख्ता वहाँ कहा था, मेरे पिताजी गरीब थे, लेकिन एक फाटका बोलते हैं ना, काठ का फाटका, वो ला करके रखते थे। रेडिया था मेरे पिताजी के पास, उस फाटको है भी फाटक पर मैं बोले, पिताजी गम का कौन लग गए, गम के नहीं लग रहे हैं, आप गाना चला दो रेडियो में और मैं डांस करूँगी। तो वो गाना चलाते थे, छोटी छोटी पायल ला के दी थी, जिसके घुघरे थे, घुघरे चांदी की पाजेब थी, और वो पहन करके और छोटी छोटी सुंदर सुंदर फ्रॉक पहन करके मेरा जीवन 5 साल का ऐसा बीता था। तभी मैं इतनी कोमल हृदय हूँ, मैं किसी को भी हत्यारे की नहीं कह सकती। जब मेरी मजबूरी आती है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, तब मैं करती हूँ ऐसे, और करना जरूरी भी होता है। नहीं, कोई भी आदमी किसी की भी इज्जत नहीं करता, इसलिए मेरे माँ बाप ने जैसे भी थे, उन्होंने मेरे 5 साल बहुत ही सुंदर जीवन दिया मुझे, और आगे भी मुझे अच्छा जीवन दिया, और आज तक देते आ रहे हैं। तो मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकती, जो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। कभी कहती हूँ, मैं एक बार जब 15 तारीख को वहाँ गई थी, मैंने गाना सुनाया था मेरी माँ को, जब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। ओ माँ रोने लग गई थी। पूरा गाना सुना, वो कभी भी नहीं सुनती थी पहले, लेकिन वो गाना पूरा सुना मेरा माँ वाला, कि माई तेरी चुनरिया, जब भी मेरे कोई समस्या आती है तो माई तेरी चुनरिया लहरा जाती है, रह के याद आती है, दिन में 10 बार याद आती है, रोने लग जाती हूँ। आज भी मैं उस समस्या से नहीं उभरी हूँ अभी तक। लेकिन सोचती हूँ वो तो गई इस दुनिया से, माँ कालजी की कौर होती है, लेकिन अभी भी बाप भी जिंदा है और भी जिंदा है। पिताजी हमेशा कहते हैं, बेटा वो मुझे कैसे छोड़ के चली गई, वो मुझे कैसे छोड़ के चली गई। पिताजी आपकी तो औरत थी, हमारी माँ थी, लेकिन उसको नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाऊंगी मैं। उस लेडी के आगे की नतमस्तक होती हूँ मैं। बहुत साथ दिया उन्होंने। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
ईश्वर मुझे इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी हिम्मत दे, इतना आत्मविश्वास दे, इतना विश्वास दे, इतना काबिल बनाए कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं।